Hello students, welcome all of you. We are reading about the chapter Indian Politics Trends and Development, and it is last chapter of this book or Politics in India since Independence. जो हमारी दूसरी वाली बुक है ये उसका लास्ट चैप्टर है. And in the last class we were discussing about the topic of alliance government in India. As I told you that after 1989 election, alliance political system started in India, which means a single party was not able to form the government. जो एक सिंगल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती है. ड्यू टू दिस more than one party come together to form an alliance, and after that they were continuing the government. एक पार्टी एबल नहीं होती है और उसके बाद में वो गवर्नमेंट को रन करती है काफ़ी पार्टीज मिलकर. क्लियर? We discuss about the National Front government. National Front government was divided into two parts: National Front first and National Front second. National Front first was led by VP Singh for 11 months. Clear? After that, National Front 2, National Front 1 was working with the support of BJP and left. Clear? But due to the Mandal Commission report, BJP withdrew the support, and after that, Chandrasekhar, who was part of National Front, formed a new party, and with the support of Congress, Rajiv Gandhi Congress, he ran the government for 7 months. Clear? After that, election organized in India in 91, and Congress won 232 seats, and with the support of DMK and other political parties, PV Narasimha Rao became the Prime Minister of India because Rajiv Gandhi got assassination by LTTE. जो लिट्टे थे उन्होंने राजीव गांधी को मार दिया था. Clear? After that, in 96 election reconducted, and Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister of India of a minority government, because minority government means he was not able to prove the majority, and his government only works for 13 days. जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी वो 13 डेज के लिए वर्क की थी. क्लियर? आफ्टर दैट द गवर्नमेंट फॉर्म यूनाइटेड फ्रंट. पहले नेशनल फ्रंट था, फिर यूनाइटेड फ्रंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस. यूनाइटेड फ्रंट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यूनाइटेड फ्रंट first was led by the H.D. Devegowda. H.D. Devegowda, leader of Janata Dal Secular Party. Clear? And after I.K. Gujral, he was also part of United Front. So, with the support of Congress, that tenure was also for a limited night, only for 2 years. 2 years का duration था, उसमें ये दोनों गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाती है. After election conducted in 98, clear? And Atal Bihari Vajpayee become the Prime Minister of India. Atal Bihari Vajpayee इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. क्लियर? एंड दैट वाज नोन एज एनडीए फर्स्ट. उसको हम एनडीए फर्स्ट कहते हैं. बीजेपी won 182 सीट्स. क्लियर? बट दैट पार्टी आल्सो वर्क फॉर 13 मंथ्स बिकॉज ड्यू टू द विड्रॉ ऑफ सपोर्ट ऑफ AIADMK, जयललिता थी, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, एंड 13 मंथ्स में वो गवर्नमेंट गिर गई थी. In NDA first, the credit goes to the nuclear test in Pokhran and another in Kargil war. India was involved in war with Pakistan in Kargil war, and India also make a test of nuclear weapons. Clear? Nuclear test भी India ने किया था. Again election conducted in 99, and now BJP also won 182 seats in the leadership of Atal Bihari Vajpayee, and that government completed his tenure. Clear? Okay. In 2004, the elections time was according to the 5 year, that was according to the in October 2004. जो इलेक्शन होने थे 2004 में, अगर 5 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट करती है अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, तो वो अक्टूबर में होते. क्लियर? बट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट रियलाइज दैट देयर इज ए फिनोमिना इन इंडियन पीपल्स इन फेवर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट. अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बाकी मेंबर्स को लगा पार्टी के कि ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है पब्लिक में बीजेपी के लिए फेवर है और पब्लिक बीजेपी को फेवर करेगी. बिकॉज इन 2003 दिसंबर इलेक्शन कंडक्टेड इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 5 और 4 स्टेट्स इन इंडिया, राजस्थान, MP, दिल्ली एंड डिफरेंट स्टेट्स, एंड बीजेपी वॉन दोज इलेक्शंस. दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो स्टेट्स थे वहाँ पर बीजेपी ने इलेक्शन को वॉन किया था. क्लियर?
So due to this, the leaders of BJP realized that it is good time to conduct election. उनको लगा कि हम यहाँ पर स्टेट्स में जीत रहे हैं और अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो ये अच्छा टाइम होगा, बिकॉज पब्लिक हमारे फेवर में है और हम क्या करेंगे, इलेक्शन को बैन कर देंगे. क्लियर. सो दैट टाइम Atal Bihari Vajpayee dissolved the parliament or request to President of India to dissolve the parliament. APJ Abdul Kalam was the Prime Minister of India. That time BJP gave a slogan that was Shining India. BJP ने एक स्लोगन दिया था Shining India का in the leadership of BJP. और अटल बिहारी वाजपेयी, the India is gone shining. India जो है वो brightness आ रहा है, India डेवलप कर रहा है. Clear? So that time BJP dissolved the parliament 4 months before. जो इलेक्शन आपके अक्टूबर में होने थे 4-5 मंथ्स पहले मई में ही उसको डिसॉल्व कर दिया. क्लियर. एंड इलेक्शन कंडक्टेड इन इंडिया. इन दैट इलेक्शन इट वाज सरप्राइजिंग एलिमेंट. All were realizing that BJP will win the election very easily because there is a great phenomena in favor of BJP. But in 2004 election, hung assembly or fractured mandate given by the people. Hung assembly और fractured mandate का मतलब होता है किसी को भी clear majority नहीं मिलना. In that election, कांग्रेस पार्टी ने 145 सीट्स. कांग्रेस को जो सीट्स मिलती है वो 145. बीजेपी 138 सीट्स. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में 7 का डिफरेंस है. And remaining seats formed by the other political parties, some regional parties, some national party like NCP, Samajwadi Party, BSP, DMK. All these parties, CPI, Communist Party of India, TMC, इन सारी पार्टीज ने क्या किया, ज़्यादा सीट्स को वोट किया था. बट दे वर ऑल सेपरेट, वो कंबाइंड नहीं थे, वो सारे अलग थे. क्लियर. सो दैट टाइम इन द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी, a alliance got formed that was known as UPA, United Progressive Alliance. एक ग्रुप अलायंस फॉर्म किया गया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के. इन दैट टाइम approximately more than 25 parties were part of UPA 1. डिफरेंट स्मॉलर पार्टीज, किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 30 है. डिफरेंट स्मॉल पार्टीज ने मिला के UPA 1 को रन किया था. क्लियर. All believes that and Congress leaders believe that Sonia Gandhi will become the Prime Minister of India. But due to some protest made by the opposition party leader and even the UPA members, तो UPA के भी जो मेंबर्स थे जो पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी सोनिया गांधी के अगेंस्ट में कहा कि नहीं, इनको नहीं बनना चाहिए. लाइक NCP, शरद पवार was earlier part of Congress party. But he resigned from the Congress party and formed a new political party due to the matter of Sonia Gandhi, because he believed that Sonia Gandhi is not an Indian origin people. जो सोनिया गांधी है वो इंडियन origin के citizen नहीं है. So he decided no one on the post of Prime Minister, only an Indian person or related to the Indian origin can become the Prime Minister of India. So after that, they finally decided that the Manmohan Singh, who was the senior leader of Congress and earlier finance minister of India also in 91 government, become the Prime Minister of India. Clear. UPA 1 government was known for the too much development in India. Today we are using cell phones. That time cell phone introduced in India at a large level. पहले तक जो सेल फोन आता था, मोबाइल जो आता था, वो अपर सेक्शन का था. बट 2004 की गवर्नमेंट आने के बाद जो मोबाइल था वो अब सबके पास आने लगा था. एंड इन 2009 इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स से कॉल रेट का रिड्यूस होना. पहले इनकमिंग कॉल का भी चार्ज लगता था, मैसेज के 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ लगते थे, बट ऑल गॉट फ्री. सो जो एक सेलुलर रिवोल्यूशन आया इंडिया में, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू UPA 1 गवर्नमेंट. क्लियर. बिकॉज स्पेक्ट्रम, देयर वाज ए ऑप्शन मेड फॉर द स्पेक्ट्रम्स. जो सेलुलर कंपनीज होती है उनके जो राइट्स दिए जाते हैं उनको उनका ऑप्शन किया गया, उनको बेचा गया. एंड ड्यू टू दिस अ ग्रेट स्कैम मेड इन इंडिया, दैट वाज 2G स्कैम. स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन हुआ था, उनकी नीलामी जो हुई थी, उनको बेचा गया, उसमें बहुत बड़ा करप्शन किया गया था. एंड दैट वाज नोन एज द 2G स्कीम.
क्लियर। ऑल्सो कॉल स्कैम, कॉल माइंस ऑल्सो मेंट ऑक्शन मेंट फॉर द कॉल माइंस, जो कॉल माइंस होती है यहाँ से कोयला निकलता है, उनका भी ऑक्शन किया गया था एंड उनको भी गवर्नमेंट ने अपने जो फेवर करने वाले पीपल्स थे उनको बहुत कम प्राइस पर बेच दिया था। क्लियर। ड्यू टू दिस कॉल करप्शन एलिगेशन एंड 2G scam corruption allegation met on the UPA-1 government, but all these scam come outside after 2009. In 2009 election we conducted because in 2004 to 2009 UPA government create a phenomena among the peoples that they are working in a large manner, they are working for the development of nations. UPA-1 ने बताया कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेजर लीडर्स इन ऑपोजिशन पार्टीज, उस टाइम पर बीजेपी में कोई बड़ा लीडर नहीं था बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी ड्यू टू द हेल्थ इश्यू विड्रॉ द पॉलिटिक्स, अटल बिहारी वाजपेयी ने हेल्थ इश्यू के कारण पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था एंड लाल कृष्ण आडवाणी एंड अदर लीडर्स वर इन्वॉल्विंग इन डिस्प्यूट टू ईच अदर, उनमें आपस में डिस्प्यूट था। So due to this, in 2009 election, Congress party won 206 seats. Some allegation put on the government also, but still Congress party was able to won 206 seats, and BJP was only limited to 116, and the rest of seats won by the other political parties. Clear? And after that, during 2009 to 2014, ये जो ड्यूरेशन था इस गवर्नमेंट का, इसमें जो ये करप्शन पहली गवर्नमेंट में हुए थे UPA-1 में, वो सारे यहाँ पर बाहर आ रहे थे पब्लिक में। अब पता चल रहा था कि इस गवर्नमेंट ने अपने फर्स्ट टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है। ओके। UPA-1 इज ऑल्सो नॉन फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो UPA-1 है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसके लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? Clear? No confidence motion is a process of the parliamentary system in India when opposition parties claim that ruling party are not in majority. Clear? And on this they demanded for voting. जब ऑपोजिशन पार्टी डिमांड करती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या नहीं है, वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास जो मेजॉरिटी क्राइटेरिया है वो सपोर्ट उतना नहीं है और इनको अपना मेजॉरिटी प्रूव करना चाहिए। इन 2008 जो फर्स्ट गवर्नमेंट का टाइम था तो 2004 से 9 तक का था। इन 2008 इंडियन गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, जो NPT जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, उस पर इंडिया साइन करता है, USA से एक एग्रीमेंट करता है। क्लियर? लेफ्ट पार्टीज, UPA-1 वाज रनिंग विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उनके सपोर्ट से UPA-1 चल रहा था। क्लियर? एंड लेफ्ट पार्टीज वाज ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ USA। लेफ्ट पार्टी होती है वो रशिया और चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इसीलिए वो USA के किसी भी सपोर्ट के अगेंस्ट में होती है। UPA-1 गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद द USA गवर्नमेंट एंड ड्यू टू दिस लेफ्ट पार्टी विड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस। जो UPA था उससे उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया कि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बट विद द सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पास 33 सीट्स थी यूपी में। क्लियर? एंड दे गिव सपोर्ट टू द UPA-1 गवर्नमेंट। जो UPA-1 गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने सपोर्ट दिया एंड UPA गवर्नमेंट सेव, जो UPA गवर्नमेंट थी वो बच गई थी, वो गिरी नहीं थी। क्लियर? तो ये एक मेजर इंसिडेंट था जो 2008 में UPA गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में हुआ था। क्लियर? लेफ्ट विड्रॉ द सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस। इन दैट इंसिडेंट ड्यूरिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन the bundles of notes also show in the parliament. It was first time in Indian history because some members of the parliament claimed that Congress party was trying to give bribe them. जो कुछ लीडर्स थे बीजेपी के वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमें पैसा दे रही थी कि आप हमारे फेवर में वोट करो, और जो नोट्स के बंडल्स थे उन्होंने पार्लियामेंट में शो किए थे एंड इट रिगार्डेड एज द ब्लैक डे ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। उसको कहा जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ब्लैक डे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्लियर?
सो विद द सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गवर्नमेंट गॉट सेव्ड, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो बच गई थी। इन 2009 इलेक्शन भी कंडक्टेड एंड बीजेपी won 116 seats, Congress won 206 seats, and UPA second. During that time, several protests made against the government on the 2G scheme, on the coal scheme, and in 2010, Commonwealth Games organized in Delhi. The Commonwealth Games होते हैं, Commonwealth are the group of countries which were earlier part of Britain. Commonwealth एक ग्रुप है जो ऐसे कंट्रीज का जो पहले ब्रिटेन का पार्ट रह चुके हैं। क्लियर? सो उनका हर साल गेम्स होते हैं उनके। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज इन इंडिया एंड इन दिल्ली। इन दैट इवेंट कांग्रेस पार्टी एंड द यूपीए गवर्नमेंट, दैट टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाज सुरेश कलमाड़ी। उस टाइम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो सुरेश कलमाड़ी थे, एंड ही मेड अ ग्रेट करप्शन इन इट। जो डेवलपमेंट किया गया था दिल्ली में, जो इवेंट्स किए गए थे, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ था और उन्होंने काफ़ी पैसे का करप्शन किया था। आफ्टर दैट निर्भया केस इन 2012 इन दिल्ली, अन्ना हजारे मूवमेंट फॉर द लोकपाल, डिफरेंट मूवमेंट्स मेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट प्रूव दैट मनमोहन सिंह वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जस्ट एज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह को अपोजिशन पार्टीज ने ऐसा प्रेजेंट किया था कि ये जो वर्क कर रहे हैं ये एक पपेट गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। पपेट प्राइम मिनिस्टर है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है इनके इंस्ट्रक्शन पर वर्क करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली नहीं है। सो इन 2014 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी का डिफीट, कांग्रेस पार्टी जो थी वो डिफीट हो गई थी। क्लियर? सो इट वॉज यूपीए 1 एंड यूपीए 2। क्लियर? नाउ वी कम ऑन द एनडीए 3rd। एनडीए फर्स्ट वॉज फॉर 13 months गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। जो पहली गवर्नमेंट थी 98 से 99 13 months की, वो एनडीए फर्स्ट होता है। एनडीए सेकंड वाज फ्रॉम 99 टू 2004, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कंप्लीट गवर्नमेंट होती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट एनडीए 3rd, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो कौन सी आती है? एनडीए 3rd की गवर्नमेंट। क्लियर? इन 2012 और इन दैट टाइम सेवरल प्रोटेस्ट मेड अगेंस्ट द यूपीए गवर्नमेंट। In 2012, election conducted in Gujarat, assembly election in Gujarat, and Narendra Modi won the election. Narendra Modi election जीत गए थे, and it was 3rd time when he became the chief minister of Gujarat. 2002 से वो election win कर रहे थे और continue वो गुजरात के CM बन रहे थे। In 2012, he also became the chief minister of Gujarat, and it proved the पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसने नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को प्रूव किया था दैट ही इज वर्किंग इन वेल मैनर एंड ही क्रिएट अ फिनोमेना दैट द डेवलपमेंट विच मेड इन गुजरात इज क्वाइट हायर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि जो गुजरात में वो डेवलपमेंट कर चुके हैं वैसा इंडिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। गुजरात मॉडल इंट्रोड्यूस बाय नरेंद्र मोदी एंड ऑल्सो ड्यू टू द फेलियर ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। As I told you, in 2012, polls created by Hindustan Times, and that time they asked the people what type of leaders you want for your nation, and they demanded we need such type of leader to work with the quick action, and all these qualities were in Narendra Modi. So now people were demanding, and members of the BJP also demanding to present Narendra Modi as the prime ministerial candidate. सबने डिमांड किया कि जो नरेंद्र मोदी है उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बिहाफ पे आपको प्रपोज करना चाहिए। इन 2013 नरेंद्र मोदी बिकम द हेड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी और इलेक्शन कमेटी, जो बीजेपी की इलेक्शन कमेटी थी उसके हेड बन गए थे, एंड 2013 एंड में जाकर उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बना दिया था। क्लियर? ही मेड अ ग्रेट कैंपेन इन द फेवर ऑफ बीजेपी एंड अगेंस्ट द यूपीए गवर्नमेंट। उन्होंने बीजेपी के फेवर में काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किया था, प्रचार किया था और यूपी के अगेंस्ट से बताया कि ये गवर्नमेंट जो है ये अब तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम
in Indian politics when personal attacks start on the opposition leader. आज तक कभी भी किसी लीडर पे पर्सनल अटैक नहीं किया जाता था कि उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, पॉलिटिकल अटैक किया जाता था, पॉलिटिकल एलिगेशन लगाए जाते थे, बट पर्सनल अटैक नहीं होता था. इट वॉज फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन कांग्रेस लीडर्स also making allegation on the personal allegation on the Narendra Modi, and even the BJP leaders Narendra Modi making allegation on the Congress leader. He showed the opposition leader Rahul Gandhi that he is not a able person for India. So in 2014 election, a great mandate achieved by the BJP after 30 years. In 1985, Rajiv Gandhi won the election with the clear majority. After that, alliance politics start. 1985 में जो इलेक्शन जीता था उसमें 414 सीट्स थी. उसके बाद जो इलेक्शन हो रहे थे, अलायंस पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट हो रही थी. मीन्स एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी. बट इट वॉज फर्स्ट टाइम आफ्टर 30 years दैट अ पार्टी गेट और अचीव मेजोरिटी क्राइटेरिया. BJP won 282 seats and Congress only limited to the 44 seats. But still, BJP was working with an alliance that was known as surplus alliance. अभी तक जो alliance बन रहे थे वो मेजोरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे थे. बट यहाँ पर BJP ने फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस किया, वो सरप्लस अलायंस था. मीन्स उसका जो नंबर है वो बढ़ता जाए. एट दैट टाइम BJP रन द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ 321 मेंबर्स. बाकी अगर पार्टीज के जो मेंबर्स थे उनका भी सपोर्ट ले लेके BJP ने 321 मेंबर्स के सपोर्ट से गवर्नमेंट को रन किया था. In 2014 election, BJP में after the winning the election, Narendra Modi became the Prime Minister of India, and he started several great effort to make reforms in Indian political system. इंडिया का जो political system था उसमें चेंज लाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था. Clear? In the next class, we will continue to discuss about the NDA third or some approach made by the NDA third and NDA fourth government and the issue of developments. After that, this chapter gonna complete. Clear? Thank you all of you.